Hello students, I hope all are happy at your home. Today we will discuss about new topic. The name of new topic is basic geometry. It is a very interesting topic. This topic is related to basic geometry. It means in this topic we will discuss about point, line, ray, line segment, perpendicular line, horizontal line, vertical line and other related to basic geometry. Okay students, so let's start our topic. First of all, we will discuss about point. All of you students know about point? What is a point? First of all, know about the definition of point. So here a point is a location represented by a dot. पॉइंट एक ऐसा डॉट है जो किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें बच्चों, इंडिया के मैप में अगर हमें जयपुर को डिनोट करना है तो हम एक पॉइंट से डिनोट करेंगे उसे. इट मीन्स ए पॉइंट इज ए लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट. तो हम ये कह सकते हैं कि जो डॉट हमने शो किया है मैप के ऊपर वो किसी एक सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, किसी एक लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ए पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, विड्थ, स्पेस ऑफ साइज. ना तो इसकी कोई लेंथ होती है बच्चों, ना विड्थ है और ना ही इसका कोई शेप होता है. हम पॉइंट को बिल्कुल माइनर भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं. ठीक है, इट मीन्स इट्स not have any length, width and shape of size. Okay students, it only has a position. It has a position. Now this is a dot. We represented here this dot by A, and this is another a dot. We represent this dot by B. Okay, now we will discuss another thing. Another one is line. First of all, know about its characteristic. First of all, know about its characteristics. So here the first characteristics of line is a line is a one dimensional. A line is a one dimensional. Now another thing about that, a line has length but no width or height. अगर हम लेंथ की बात करें तो लाइन की लेंथ होती है बट इसकी विड्थ और हाइट नहीं होती है. And this is the very important point. A line extends forever in both directions. We can increase or decrease in both sides. लाइन को हम दोनों तरफ हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और बच्चों डिक्रीज भी कर सकते हैं. दिस इज ए लाइन. दिस इज ए लाइन. When we denote a line, now look here all of you students, now we denote a line. A line passing through a point A and B is denoted by line AB. हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे जब कभी हमें कहीं लिखना होगा लाइन के बारे में तो पहले नाम लिखेंगे और उसके ऊपर हम लाइन का मिनिएचर लगाएंगे. लाइन स्मॉल में हम उसको लिख देंगे, लाइन की एक पिक्चर बना देंगे वहाँ पर. स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट रे. सो some characteristics of ray. First of all, first characteristic of ray is a ray is a part of line that has one endpoint. A ray is a part of line that has one endpoint. इसका एक एंड पॉइंट होता है. ठीक है. Another thing about that, it's extend in one direction endlessly. जिस तरफ इसमें एरो का साइन होगा उस तरफ हम इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. एंड द अनदर वन, दिस इज ए रे. वन इज एंड पॉइंट. व्हेन वी डिनोट दिस रे लाइक दिस रे ए बी, और ए बी के ऊपर रे का साइन हम. ठीक है ना, ए बी के ऊपर क्या करेंगे हम, रे का साइन लगा देंगे तो वो हो जाएगा रे के बारे में. ओके, Now we will discuss about
line segment. What is a line segment? And also its characteristic. So first one is a line segment is a part of line which has defined endpoints. It means हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं एंड इट हैज़ ए बिगनिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी. व्हेन वी डिनोट ए बी लाइक दैट, अगर हमें डिनोट करना होगा ए बी लाइन को तो हम इस तरीके से उसे डिनोट करेंगे. ए बी के ऊपर हम लाइन सेगमेंट का साइन लगा देंगे. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट another thing is comparison among line ray and line segment. There are some differences in line segment and ray. So the first differences among these three, one is there are no endpoints in a line. There are no endpoints in a line, but in a ray has one starting point. ray has one starting point. इसमें एक फिक्स पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट. बट इन लाइन सेगमेंट इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. इसमें कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? टू एंड पॉइंट्स होते हैं. नाउ अनदर differences among both three, there are no endpoints, so length of a line cannot be measured because its endpoint नहीं होते हैं इसके बच्चों endpoints, तो हम इसको मेज़र नहीं कर सकते. एंड इन रे इट हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो अदर पॉइंट, सो इट्स लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड. इसमें एक पॉइंट तो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए इसको भी हम बच्चों मेज़र नहीं कर सकते. ओके, एंड द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज डेफिनेट, सो इट कॉल्ड बी मेजर्ड. इसके दोनों के दोनों पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम इसको मेज़र कर सकते हैं. इसकी एक फिक्स लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की, जबकि लाइन और रे की फिक्स लेंथ नहीं होती है. नाउ अनदर वन इज द सिंबल ऑफ ए लाइन इज, दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन एंड द सिंबल ऑफ रे इज, this is the symbol of ray, and the symbol of a line segment is, this is the line segment. अब बच्चों लाइन सेगमेंट दोनों तरफ एरो के साइन है. रे के अंदर एक तरफ एरो का साइन है, जबकि लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस अमॉन्ग लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट. ओके स्टूडेंट्स, I hope all of you understand about differences among line, ray and line segment. Now we will discuss about horizontal line. First of all, know about what is a horizontal line. Okay students, first of all know about what is a horizontal line. Okay, when a line move from left to right in a straight direction, it is called a horizontal line. अगर किसी लाइन को हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस में मूव कराएं तो वो कौन सी लाइन कहलाती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है. ठीक है, when a line move from left to right in a straight direction, it is called horizontal line. This is a line, horizontal line AB. Okay students, this is a horizontal line AB. Now we will discuss about vertical line. Vertical line, a line when a line move from top to bottom in a straight direction. When a line move from top to bottom in a straight direction, it is called a vertical line. जिसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं वो लाइन होती है हमारी वर्टिकल लाइन. दिस इज ए वर्टिकल लाइन. ओके स्टूडेंट्स,
This is a vertical line. Now we will discuss another line. The name of the another line is perpendicular line. When two lines meet or intersect at an angle of 90 degree or at a right angle, then they are perpendicular to each other. वो लाइन कैसी होगी बच्चों? Where two lines are intersect at a right angle, जहाँ पर दो लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो लाइंस कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, वो कौन सी लाइन कहलाएंगी? हमारी परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी. सो दिस इज ए परपेंडिकुलर लाइन. हियर ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी. ए बी जो है लाइन वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर. Now we will discuss about another line. The name of the another line is parallel line. Now about the parallel line, when two straight lines don't meet or intersect at any point. वे two lines जो किसी भी point के ऊपर आपस में intersect ना करें, even in infinity, that they are parallel to each other. अगर हम उन लाइंस को आगे भी बढ़ाएं तो भी वो किसी भी पॉइंट्स पर जाकर के इंटरसेक्ट ना करे. दैट मीन्स दैट लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन. दीज आर द पैरेलल लाइंस. द गैप बिटवीन टू लाइंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट सेम. यहाँ पर इनके बीच का जो गैप है, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो या एंडिंग पॉइंट, वहाँ पर हमेशा बराबर रहता है, तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस. ठीक है बच्चों. नाउ वी विल डिस्कस अनदर लाइन. द नेम ऑफ द अनदर लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन. सो व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन? व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन ए प्लेस, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. जहाँ पर टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें. अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के ऊपर क्रॉस करें, कहीं पर भी क्रॉस करें, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. द इंटरसेक्टिंग लाइन्स शेयर ए कॉमन पॉइंट विच एग्जिस्ट इन ऑल द इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं लाइन्स, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. For example is given here. Two lines are shown here, P and Q, and these two lines are intersecting at point O. So the point O is point of intersection. Okay, so ये point क्या कहलाएगा बच्चों? Point of intersection. Line P and Q intersect at point O, which is the point of intersection. I hope all of you understand about these lines, अबाउट बेसिक ज्योमेट्री. सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों. इस बेसिक ज्योमेट्री के अंदर जो हमने आज बातें की, उन सभी को आपको अच्छे से लर्न करना है और इनको समझना है. ठीक है बच्चों. ओके, बाय.